السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ۔ میں ہوں انزل عرفان۔ بلیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گی ہدا شاہبی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کے جارحانہ اقدامات سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے مثبت تجاویز کا بھارت نے جواب نہیں دیا۔ جنوبی ایشیا میں جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیر میں کالا قانون نافذ کیا تھا۔ بھارت کو تعلقات معمول پر لانے کے لیے کشمیر میں آرٹیکل 370 کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ فلسطین کی طرح مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کشمیریوں نے برہان وانی کی جدوجہد کو اپنایا ہوا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ The people of Jammu and Kashmir have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. These resolutions mandate a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. Day in and day out, 900,000 Indian troops terrorized the people of occupied Jammu and Kashmir, prolonged curfews, extrajudicial killings, and the abduction of thousands of young Kashmiris. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime and take over Azad Kashmir, that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression to secure durable peace. وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں موجود داعش اور کالعدم TTP کی شکل میں فتنہ الخوارج کا سامنا ہے۔ افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں $150 ارب کا نقصان ہوا۔ انشاءاللہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جیتیں گے۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملک ہے۔ ہم نے معیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ پاکستان میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں امن کے لیے خطرہ قرار۔ فتنہ الخوارج کے عزائم کو ہر صورت ناکام بنائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دنیا پر واضح کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کا مسئلہ اٹھا دیا۔ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کالعدم TTP، BLA اور مجید بریگیڈ افغانستان میں ہے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد گروپس کا خاتمہ کرے۔ For 2 decades, Pakistan has fought terrorism boldly and most successfully, defeating terrorist groups within Pakistan. We have paid a very heavy price. 80,000 of our brave soldiers and civilians have been martyred, including innocent school-going children. وزیراعظم شہباز شریف نے ملکی اور عالمی معاشی مسائل پر کہا پاکستان میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ مؤثر پالیسیز کی بدولت پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ معاشی اشاریہ بہتر اور مہنگائی میں کمی ہوئی ہے۔ We have taken some very difficult but necessary decisions that have rescued our economy from collapse, restored macroeconomic stability, controlled physical deficits, and strengthened our reserves. As a result, inflation has come down to a single digit by the grace of God, and the prospects for economic growth has revived. وزیراعظم نے موسمیاتی تبدیلیوں کو سب سے بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ کہا 2 سال قبل پاکستان میں تباہ کن سیلاب آیا جس سے جانی اور $30 ارب کا نقصان ہوا، جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ 2 years ago, my country was devastated by catastrophic floods, causing $30 billion in damages. It is now clear that each summer will bring blistering temperatures and trigger fresh climate impacts. Pakistan emits less than 1% of global carbon emissions, yet we have paid a very heavy price for no fault of ours.
वज़ीर आज़म ने कहा कि 100 से ज़ायद तरक्की पजीर ममालिक कर्जों के चंगुल में हैं। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन का मुक़दमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बोले कि इसराइल गज़ा में नस्ल कुशी कर रहा है, फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं, दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गज़ा में बच्चों के जिंदा दरगोर होने पर दुनिया कब तक खामोश रहेगी? गज़ा के बच्चों का खून सिर्फ इसराइली फ़ौज के हाथों पर नहीं, उन पर भी है जो खामोश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन को अपना रुकन तस्लीम करें। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती फार्मूले में हल मौजूद है। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। लेबनान में इसराइली जारहियत शुरू हो गई। इसराइली जारहियत से ख़ित्ते में बड़ी जंग का ख़तरा बढ़ गया। पाकिस्तान यूक्रेन जंग का भी पुरअमन हल चाहता है। People of Pakistan at the plight of the people of Gaza. Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land. Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. When we ignore their endless suffering, we diminish our humanity. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. We must remember that the blood and sacrifice of the innocent Palestinians will never go waste. Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. Israel's unrelenting bombing of Lebanon has killed over 500 people, including women and even small children. Failure to implement UN resolutions has emboldened Israel. It threatens to drag the entire Middle East into a war. और फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान का आलमी सतह पर एहतजाज। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब के लिए आने पर पाकिस्तानी वफ़द का वॉकआउट, नारेबाजी भी की गई। जनरल असम्बली में इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई और नेतन्याहू के आते ही कई मुल्कों के सिफारतकार जनरल असम्बली का इजलास छोड़कर चले गए। इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान ऐवान में खूब शोर शराबा हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि वो अफराद जो मुआशरे में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे, तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों से शिकस्त खा चुके हैं। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। कौम को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर मुकम्मल यकीन और एतमाद होना चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अक़वाम आलम की सफ़ में अपना जायज़ मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। आर्मी चीफ ने दौरे कराची में इनोवेस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। सिपा सालार से ताजरों ने भी मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशस्तों के केस पर हुक्म इम्तनाती। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। 8 जजेस की 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला मफरूज़ों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। मखसूस नशिस्तों पर अदालत उज़्मा की 14 सितंबर की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती फैसले पर ताख़ीर की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन नहीं। कहा गया कि अदालत ने तहरीक इंसाफ को जवाब के लिए कब नोटिस जारी किया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दस्तावेज़ात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब नहीं किया। नजरसानी दरख्वास्त में कहा गया है, इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की इस्तदा भी कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का दरख्वास्त में कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसलिए कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब जो जवाब जमा कराया है, 4 सवाल जमा करवाए हैं एक रेफरेंस के सूरत में, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिख के हमें बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद बयान हल्फी जमा कराए। अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फी को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया।
नाज़रीन, आईनी तरामीम पर हुकूमत ने इत्तेहादियों का एतमाद में नहीं लिया। हमें कानून साजी करनी है तो उसे इतना मख्फी कैसे रखा जा सकता है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि अगर हुकूमत संजीदा नहीं या मामलात को संजीदा नहीं लेती तो मामलात कैसे चलेंगे। आईनी अदालत के लिए फैसला तब होगा जब हमें ड्राफ्ट मिलेगा। आईनी अदालत मुल्क की ज़रूरत है, किसी फ़र्द को सामने रखकर कानून साजी नहीं होगी। ये तासुर गलत है कि किसी एक जज को नवाजने के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दुनिया भर में आईनी अदालतें होती हैं लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। अदालतों में हज़ारों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, सियासी मुकदमात को अहमियत मिल जाती है, अवाम के मुकदमात लटक जाते हैं। भुट्टो के केस में हमें 45 साल बाद इंसाफ मिला। कोई इदारा ऐसा नहीं जो हुकूमत से बालातर हो। सिंध हुकूमत NFC वार्ड में नजरसानी चाहती है। 26वीं आईनी तरमीम का मामला, पीपल्स पार्टी ने JUI से राब्ता कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द की आज JUI की क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज अहमद, बताइए इस मुलाकात बारे कब मुतवक्के है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि नैयर बुखारी, शरीर रहमान और नवीद कमर पर मुश्तमिल वक्त रात 10 बजे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाई गाह पहुंचेगा, जहां मौलाना फजलुर रहमान, कामरान मुर्तज़ा और JUI के बाद दीगर रहनुमाओं के साथ जो पीपल्स पार्टी ने मुसवदा तैयार किया है 26वीं आईनी तरमीम का, जिसमें आईनी अदालत का क़याम खासतौर पर शामिल है, वो JUI के साथ शेयर करेगा और उसके बाद उस पर मुशावरत भी की जाएगी। जी शुक्रिया एजाज अहमद, आप बता रहे थे। और तहरीक इंसाफ के लाहौर में दोबारा पावर शो से कबल पार्टी में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं। मामला क्या है बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताएगा इस हवाले से। जी, तहरीक इंसाफ 5 अक्टूबर को दोबारा लाहौर में पावर शो करने जा रही थी। इस हवाले से पार्टी में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं। हमाद अजहर के हमायती और मियां असलम के हमायती जो है वो आमने सामने हो गए। 19 MNAs और MPs के जो उम्मीदवार थे 2024 के आम इंतखाबात में, उनके आपस में इख्तलाफात के बाद उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया है और इस पर उनकी जानब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इससे कबल जो जलसा किया गया उसके लिए जो फंड दिए गए थे वो कहाँ खर्च किए गए। कोई गाड़ी भी नहीं लाए गए और ना ही कोई लाइटिंग का बंदोबस्त था, ना साउंड सिस्टम का बंदोबस्त था। 6 बजे जब सिस्टम बंद किया गया तो उसका मुतबादल कोई भी नहीं था और ये तमाम जो फंड इकट्ठे किए गए थे वो कहाँ खर्च किए गए, जिस पर जो शेख इम्तियाज जो कि सूबाई सदर हैं पार्टी के, उनके जो हमायतियों की जानिब से खरी खरी इन उम्मीदवारों को सुनाई गई, जिसके बाद ये उम्मीदवारान जो है उन्होंने 19 अरकान MNAs और MPs के हैं, जिन्होंने ये ग्रुप लेफ्ट कर दिया। बहुत शुक्रिया आतिफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में 28 और 29 सितंबर के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शरपसंद अनासिर एहतजाज की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ सर अंजाम दे सकते हैं। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और अटक में 28 और 29 सितंबर को दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब होने से रोका जाएगा। इज्तिमाआत, धरने, जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी आयद रहेगी। असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद रहेगी। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मौसूल हो चुकी है। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। IMF ने बड़े कर्ज के लिए बड़ी शराइत रखी हैं। रिटेलर्स, प्रॉपर्टी और ज़राई सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं मिलेगी। टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियाँ लगेंगी। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि वो मुबारक सानी केस में तसीस शुदा महफूज फैसला जल्द जारी करे। बार एसोसिएशन ने अपने मेंबरशिप फॉर्म और कागजात नामजदगी फॉर्म में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलफनामा शामिल करने का भी फैसला कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास में सरकार बनाम मुबारक सानी केस में वफाक की तरफ से दायर करदा मुतफर्रिक दरख्वास्त पर महफूज किए जाने वाले फैसले पर बहस हुई। इजलास में कहा गया कि अदालत ने वफाक की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अपने फैसले से मुतरज़ पैराग्राफ हज़फ किए और तफसीली फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट बार ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि महफूज शुदा तफसीली फैसला जल्द जारी किया जाए ताकि इज़्तिराब का खात्मा हो। खबर देंगे पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल भी बारिश का इम्कान है।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, दर्जा हरारत गिर गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नालालई में पानी की सतह 11 फीट बुलंद होने पर इंतजामिया ने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। सराय आलमगीर में नदी नाले बिफर गए। बारिशी पानी घरों में दाखिल। मेन जेटी रोड पर 3 फीट पानी जमा हो गया। 11,000 केवी बिजली के तार गिर गए। फैसलाबाद, अटक, जहलम, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और शेखुपुरा में भी बादल जमकर बरसे। आजाद कश्मीर और वादी सोन के पहाड़ों पर बादोबारा का सिलसिला जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा में काली घटाएं छाई रही। बुनेर और औरकजई समेत मुतादिद शहरों में मी